Okay, students, in the last lecture, we have seen about the how the molar conductivity of weak electrolyte varies, and we have seen that the molar conductivity of weak electrolyte increases on dilution, that is on decreasing concentration, but it increases very slowly. So, if we plot a graph of molar conductivity versus square root of concentration, the graph is not linear, and therefore, by graphical method, the molar conductivity at zero concentration cannot be determined. And so, the Collar's has given one law, and that is called as what? Collar's law of independent migration of ion. Collar's law of independent migration of ion. And what is the Collar's law? The law states that at infinite dilution, each ion migrates independent of its co-ion and contributes to total molar conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of the other ion to which it is associated. Collar's law. And then we have seen the capital lambda is the molar conductivity of electrolyte, and small lambda is the molar conductivity of cation and molar conductivity of anion. Correct? Then we have also seen the application of the Collar's law. What is the first application? The Collar's law can be used to calculate the molar conductivity of an electrolyte at zero concentration. And second, the law is particularly useful for calculating the molar conductivity of weak electrolyte from those of the strong electrolyte. मतलब अगर हमें strong electrolyte का conductivity मालूम है तो हमने weak electrolyte का conductivity find out कर सकते हैं. तो यहाँ तक हम लोग ने last lecture में किया था. Today I will start with the numerical based on the Collar's law, and then we'll proceed for the further part. Okay. So we are having here the numerical. Yes, the numerical based on Collar's law. Okay, the first, now here in the exercise, they have not given any numerical. They have given the solved numerical. So I'll start with the solved numerical. Okay. So numerical based on the Collar's law. The first numerical I will do it here is, I'm just sharing the numerical with you all. See, what is the numerical here? Calculate the molar conductivity of AGI. मतलब हमें AGI का conductivity find out करना है at zero concentration, and AGI is a weak electrolyte. Okay, and they have given the molar conductivity of sodium iodide, silver nitrate, sodium nitrate, and they are strong electrolyte. यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी दिया हुआ है और हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. करेक्ट? So I'll write down the data first. AGI is a weak electrolyte. Okay, so I'll just write here. This problem is on page number 95, and solved problem 5.2. Solved problem 5.2. Okay, now see here in this problem they have asked us find out the molar conductivity of AGI at zero concentration. You find out करना है, and they have given the molar conductivity of NaI, sodium iodide, molar conductivity of AgNO3, and molar conductivity of NaNO3
and all molar conductivity are given at zero concentration. So these values are given. The sodium iodide conductivity is 126.9, silver nitrate is 133.4, and sodium nitrate is 121.5, and all conductivities are having the unit per ohm, centimeter square, per mole. Okay, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, they have given the molar conductivity of strong electrolyte और हमें फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. करेक्ट. तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है AgI, so now normally we know that AgI contains which ion? AgI contains which ion? Ag plus and I minus. AgI contains which ion? Ag plus and I minus. So here I can say molar conductivity of Ag plus at zero concentration plus molar conductivity of I minus at zero concentration. And we know that Ag is 1, so Ag1, यहाँ पे 1 number है, I1, तो यहाँ पे I1. That means अगर मुझे AgI का मोलर कंडक्टिविटी अगर फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशंस के अंदर कौन से आयंस होने चाहिए? Ag प्लस एंड I माइनस, ये दो आयंस हमारे पास होने चाहिए. तो अभी हमें देखना है, देखो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? सोडियम आयोडाइड. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम आयोडाइड. तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे आयन लिखूंगा NaI when dissolved in water will produce what? Na plus and I minus. Silver nitrate when dissolved in water क्या प्रोड्यूस करेगा? ये NO3 पूरा एक कंप्लीट ग्रुप है, तो यहाँ पे NO3 मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? Ag plus and NO3 minus. And third is NaNO3 sodium nitrate, nitrate complete group है. Sodium nitrate when dissolved in water क्या प्रोड्यूस करेगा? Na plus and NO3 minus. See here, sodium iodide when dissolved in water will produce what? Na plus and I minus. Silver nitrate when dissolved in water will produce what? Ag plus and NO3 minus. And sodium nitrate when dissolved in water will give you what? Na plus and NO3 minus. I'm just calling this as equation number 1. This is equation number 2 and this is equation number 3. अगर तीन इक्वेशंस है, तो अभी देखो यहाँ पे अगर मुझे AgI का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो मुझे सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिलने चाहिए? Ag प्लस मिलना चाहिए. तो देखो यहाँ पे Ag प्लस इधर है इक्वेशन नंबर 2 में. ओके, और मुझे क्या चाहिए? I माइनस कहाँ पे? यहाँ पे इक्वेशन 1 में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अगर ये तीनों वैल्यूज अगर मुझे यूज करने हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और अगर ये 3 है, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करना पड़ेगा. बिकॉज NaI से मुझे मिल रहा है कौन सा आयन? आयोडाइड. AgNO3 से मुझे क्या मिल रहा है? Ag प्लस. तो मुझे यहाँ पे Ag प्लस भी चाहिए और मुझे यहाँ पे I माइनस भी चाहिए. मुझे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करना पड़ेगा. ओके, एंड ये नहीं चाहिए मुझे. इसका मतलब ये Na प्लस और Na प्लस कैंसिल होना चाहिए. NO3 माइनस कैंसिल होती है, इनको कैंसिल करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँ यहाँ पे? ऐड इक्वेशन 1 and equation 2, add equation 1 and 2 and minus equation 3. Add equation 1 and equation 2, मतलब equation 1 and 2 को add करो and equation 3 को minus करो, तो फिर मुझे मिलेगा molar conductivity of AgI. So I'll just write down here the molar conductivity of AgI at zero concentration is equal to
molar conductivity of AgI at zero concentration is equal to, मुझे NaI का कंडक्टिविटी ऐड करना है और AgNO3 का भी कंडक्टिविटी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaI माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaNO3, ये माइनस करना NaNO3, करेक्ट। तो अभी देखो पहले मतलब इसको ब्रेक, आयन को ब्रेक करो। AgNO3 क्या प्रोड्यूस करेगा? AgNO3 will produce Ag plus and NO3 minus. Molar conductivity at zero concentration. देखो कैप मतलब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और स्मॉल लैम्डा मतलब कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ओके, प्लस conductivity of Na plus and molar conductivity of I minus at zero concentration. And now it is minus. Normally NaNO3 will produce which ion? Na plus and NO3 minus. Okay, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? माइनस molar conductivity of Na plus minus molar conductivity of NO3 minus at zero concentration. Okay, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस लैम्डा Na और यहाँ पे माइनस लैम्डा Na, we get cancel, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस लैम्डा 0 NO3 एंड माइनस लैम्डा 0 NO3 भी कैंसिल हो जाएगा। So what is remaining here? The molar conductivity of Ag plus at zero concentration plus molar conductivity of I minus at zero concentration. आ गया, मतलब हमारा एडिशन सही है, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करना है और इक्वेशन 3 को माइनस करना है। So now I'll write down the value of AgNO3. हमारा AgNO3 का वैल्यू कितना था? 133.4. So I'll just write down here 133.4 plus NaI. What is the value of NaI? 126.9. So 126.9 and minus NaNO3. हमारे NaNO3 का मोलर कंडक्टिविटी कितना था? 121.5. So here we'll have 121.5. Okay. So now here if I'll add all these values, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 9 plus 4 13, 6 plus 3 9 plus 1 10, 3 plus 3 6, 260.3 minus 121.5। अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 138.5 and this is the molar conductivity of AgI at zero concentration and unit will be per ohm centimeter square per mole and we got the answer. तो ये हमारा कोलार्स लॉ का एप्लीकेशन था कि अगर देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, तीनों जो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए, all three are which type of electrolyte? Strong electrolyte। मतलब अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी मालूम है तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द कोलार्स लॉ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ। AgI कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहा था? Ag प्लस एंड I माइनस। तो अभी मुझे तीनों को यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज करना है और हमें देखना है कौन कौन क्या क्या आयन प्रोड्यूस करते हैं। NaI क्या प्रोड्यूस कर रहा था? Na प्लस एंड I माइनस। AgNO3 क्या प्रोड्यूस कर रहा था? Ag प्लस एंड NO3 माइनस। और मुझे AgI चाहिए तो इसलिए मुझे दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करना पड़ेगा एंड देन वी गॉट द आंसर। ओके, नाउ वन मोर प्रॉब्लम विल डू ऑफ सेम टाइप। ओके,
I'll share the problem with you. This is the problem here. They have given as a try this. Calculate the molar conductivity of CH2ClCOOH, chloroacetic acid. The name of the compound is chloroacetic acid. Calculate the molar conductivity of chloroacetic acid at zero concentration if the molar conductivity of HCl, KCl and potassium chloroacetate are given. तो यहाँ पे ये क्लोरोएसिटिक एसिड वीक है और HCl, KCl और ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी दिया हुआ है और हमें वीक का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी. ओके, खाली में कंडक्टिविटी बोलूंगा तो K होगा, लेकिन अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी बोलूंगा तो लैम्बडा 0 होगा. तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो आई जस्ट राइट डाउन द डेटा फर्स्ट. It is, again I will say the problem from page number 95 and under the heading try this. Okay, now they have asked us to calculate the molar conductivity of CH2Cl COOH at zero concentration, which is called as chloroacetic acid. What is acetic acid formula? Acetic acid formula is CH3COOH, but one of the hydrogen atom is replaced by Cl. One of the hydrogen atom is replaced by Cl, and therefore it is called as what? Chloroacetic acid. Okay, so अभी chloroacetic acid कौन सा है प्रोड्यूस किया, हमें फाइंड आउट करना है. Then they have given the molar conductivity of HCl, molar conductivity of KCl and molar conductivity of CH2ClCOOK at zero constant. इनका molar conductivity उन्होंने दिया हुआ है. So molar conductivity of HCl is 4.261. It is 1.499 and it here is 1.132, and all are molar conductivity. So unit is per ohm centimeter square per mole. Per ohm centimeter square per mole. Now here ये जो तीनों है they are strong electrolyte. ये तीनों strong electrolyte है और ये weak electrolyte है. एंड हमें मालूम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग पोलर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड से. मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकल मेथड से, और वो उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है. हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड. तो अभी यहाँ पे पहले इक्वेशन कैसा आएगा, देखो यहाँ पे द मोलर कंडक्टिव, और मैं जस्ट राइट डाउन दिस वे, CH2Cl COOH क्या कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, देखो when this dissolved in water will give you which ion, CH2Cl COO minus and H. मतलब इसका हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी, और इसके आयन. अभी मैं इनको यूज करूंगा. इक्वेशन नंबर 1, HCl dissolved in water will produce which ion, H plus and Cl minus. KCl dissolved in water gives which ion, K plus Cl minus, and third CH2Cl COOK. When dissolved in water we get what, CH2Cl COO minus and K plus. ये आएंगे. तो अभी देखो मुझे कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है क्लोरोएसिटिक एसिड का, इसका फाइंड आउट करना है, और वहां पे कौन से आयंस होने चाहिए, CH2Cl COO minus.
वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, और दूसरा आयन कौन सा रहेगा, H+, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर मुझे क्लोरो एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, करेक्ट, तो मुझे ये आयंस होने चाहिए। इसका मतलब मुझे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हियर आई विल से ऐड equation number 1, or I can say first I'll write equation number 3 and equation number 1, और बाद में हमें Cl नहीं चाहिए, Cl माइनस नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल होना चाहिए। हमें K प्लस भी नहीं चाहिए, तो कैंसिल होना, इसलिए क्या करोगे, माइनस इक्वेशन 2। देखो आ रहा है समझ में, क्लोरो एसिटिक एसिड ये आयन फॉर्म करेगा, और ये क्लोरो एसिटेट आयन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, H+ आयन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को ऐड करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो नाउ विल ऐड हियर, तो हियर आई राइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH2 Cl COOH at 0 concentration is equal to molar conductivity of CH2 Cl COOK at 0 concentration plus molar conductivity of HCl at 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने ऐड कर दिया और इसे माइनस करना है, तो माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl at 0 concentration। okay? Now I'll form the ions। इनके आयंस फॉर्म करेंगे आप लोग, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखे हैं आयंस, लेकिन यहाँ पे आयंस क्या मिलेगा, लैम्बडा 0 ऑफ CH2 Cl COO माइनस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ K। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस लैम्बडा 0 ऑफ K प्लस माइनस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस। क्या हुआ, अभी कौन सा आयन कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे लैम्बडा 0 K प्लस, ये प्लस है, और लैम्बडा 0 K प्लस से माइनस है, तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू गेट कैंसिल, प्लस लैम्बडा 0 Cl माइनस और माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग हियर, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH2 Cl COO minus at 0 concentration plus molar conductivity of H plus at 0 concentration। ओके, तो ये हुआ हमारा करेक्ट आ गया, मतलब हमें यही आयन चाहिए थे। देखो CH2 Cl COO माइनस और H प्लस चाहिए था, और यहाँ पे हमें आयन, मतलब हमारा एडिशन सही है, तो अभी डायरेक्टली मैं ऐड करूंगा कंडक्टिविटी ऑफ CH2 Cl COOK CH2 Cl COOK 1.132 1.132 plus HCl 4.261 minus KCl 1.499। okay, okay, now I have to add all these values here, so I'll add 2 plus 1 3, 6 plus 3 9, 2 plus 1 3, 4 plus 1 5 minus 1.499। ओके, अब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा यहाँ पे, तो 5.393 माइनस 1.499। ओके, 4 so answer I'm getting a 3.894 per ohm
centimeter square per mole is the molar conductivity of CH2 ClCOOH. Okay, this is the molar conductivity. So the second problem, which is based on the Collard's equation, the second problem based on the Collard's equation. अभी कोलार्स के और भी प्रॉब्लम, हमें एक प्रॉब्लम करना है, लेकिन यहाँ तक बोलो किसी कोई डाउट है क्या? ये दो प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट्स वगैरह है क्या? Okay, thank you Gauri. Now I'll go for the next problem of this Collard's law का ये, बट थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है. Again, it is page number 95. I'm just sharing the problem with you. प्रॉब्लम क्या है? देखो यहाँ पे कैलकुलेट, एक मिनट, calculate the molar conductivities of at zero concentration of calcium chloride. हमें कैल्शियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट. दोनों का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. एंड they have given, उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया है? देखो, they have given the molar ionic conductivities of calcium chloride, sodium and sulfate ion. मतलब उन्होंने क्या किया, हमें आयंस का कंडक्टिविटी दिया हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है. ये कोलार्स लॉ का एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट था. मतलब अगर हमें आयन का कंडक्टिविटी मालूम रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते. तो कैसे अभी देखेंगे. 1 मिनट. See here, see they have asked us to find out the molar conductivity of calcium chloride. Find out करना है. Also we have to find out the molar conductivity of sodium sulfate. These two conductivity we have to find out, and we know that conductivity has the unit per ohm centimeter square per mole. And what information they have given? That they have given the molar conductivity of Cl minus ion at zero concentration, molar conductivity of Na plus at zero concentration, molar conductivity of calcium 2 plus, and molar conductivity of sulfate at zero concentration. So they have given, these are called as a ionic molar conductivity. मतलब उन्हें आयंस का कंडक्टिविटी दिया हुआ है और हमें इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. करेक्ट. एंड आई विल राइट डाउन द वैल्यू हियर. द फर्स्ट वन दे हैव गिवन कैल्शियम. Calcium is 104, Cl is 76.4, sodium 50.1, and sulfate 159.6, and all are having the same unit per ohm centimeter square per mole. ओके, तो इन्होंने आयन का कंडक्टिविटी दिया हुआ है. तो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है. तो क्या करूंगा मैं? देखो यहाँ पे द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. अगर मुझे सबसे पहले यहाँ पे देखो एक इक्वेशन देखो. अगर कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड क्या प्रोड्यूस करेगा?
2 will go here and will become Ca2 plus, and 1 will go here and become minus, so Cl minus. Calcium 2 plus, Cl minus. Calcium 1, calcium 1, chlorine 2, chlorine. So we know that calcium chloride contain 1 calcium ion and 2 chloride ion. Okay, so अब यहाँ पे आएगा molar conductivity of calcium chloride at 0 concentration is equal to the molar conductivity of calcium cation at 0 concentration plus 2 into the molar conductivity of Cl minus ion at 0 concentration. तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमारे पास कितने क्लोराइड है, 2. सेम है, कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन plus conductivity of the anion, but how many anion we are having over here, 2, so we have multiplied by 2. Now write down here calcium 2 plus, what is conductivity, 104 plus 2 into chloride 76.4, so equal to here 104 plus 104 plus 4 2s are 8, 6 2s are 12, 7 2s are 14 plus 150, and now add here 8.65, 256.8 per ohm centimeter square per mole. So this is the molar conductivity of calcium chloride at 0 concentration. ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट हुआ. अभी सेकंड उन्होंने क्या बोला, देखो, फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट एट 0 concentration. ओके, तो अभी सोडियम सल्फेट के पहले आयंस लिखो. सोडियम सल्फेट Na2SO4 when dissolved in water will produce what? ये सल्फेट कंप्लीट एक ग्रुप है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 4 इधर चला जाएगा और +4 आएगा, नहीं. सल्फेट एक कंप्लीट ग्रुप है और यहाँ पे नंबर 1 है, तो ये 1 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, Na प्लस, और 2 यहाँ पे चला आएगा तो क्या मिलेगा, SO4 2 minus. 1 will go here and become +1 and 2 will go here and minus. How many Na2? Na2. Sulfate 1. Sulfate 1. Okay. So now I know that there are 2 sodium ion and there is a 1 sulfate ion. So I'll just write down here molar conductivity of sodium sulfate at 0 concentration is equal to the molar conductivity of sodium ion at 0 concentration multiply by 2 plus molar conductivity of sulfate at 0 concentration. Now substitute the values. 2 into sodium conductivity 50.1 plus sulfate conductivity 159.6. Okay, so I'll just multiply here. 2 1s are 2, 2 0, 5 2s are 10 plus 159.6. So now I'll add here 100.2 plus 159.6. अगर मैं ऐड करूंगा तो 6 plus 2 8, 9 5, 259. So I got here 259.8 per ohm centimeter square per mole. This is the molar conductivity of sodium sulfate. तो ये हमारा कोलार्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन था कि अगर मुझे आयोनिक कंडक्टेंस मालूम है, मतलब आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी अगर मुझे मालूम है, मतलब अगर मुझे हर एक आयंस का कंडक्टिविटी मालूम है तो मैं इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो ये कोलार्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन था. ओके, यहाँ पे किसी कोई डाउट है क्या बिफोर आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट?
यस, जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब एकदम एक्सट्रीमली डाइल्यूट। जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, थैंक यू। नाउ प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट है और एक कंसेप्ट के ऊपर बेस न्यूमेरिकल है। तो आई जस्ट गोइंग फॉर हियर नेक्स्ट हेडिंग, molar conductivity and degree of dissociation molar conductivity and degree of dissociation of weak electrolyte। नाउ हियर यहाँ पे हमें एक रिलेशन बताना है कि मोलार कंडक्टिविटी ओके और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन है। मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो हियर व्हाट इज डिसोसिएशन। Dissociation means tendency to form the ion. Here dissociation means, dissociation का मतलब क्या, tendency to form ions, and degree of dissociation means to what extent electrolyte can form ions। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस अगर हमें वाटर में डिसॉल्व कर दिया, मतलब अगर हमारा कंपाउंड आयोनिक रहेगा और आयोनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, आयंस फॉर्म करेगा। तो फॉर्मिंग द आयंस इन द वाटर आर कॉल्ड एज डिसोसिएशन। एंड डिग्री का मतलब हाउ मेनी आयंस, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ओके, तो सब पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब या अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बोला सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड कर, तो मैं सबसे पहले उसे क्या पूछूंगा कि सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसोसिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर सोडियम क्लोराइड ने आयंस फॉर्म किए होंगे तो वो क्या बोलेगा, यस सोडियम क्लोराइड इन वाटर हैज गॉट डिसोसिएटेड। फिर मैं उसको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि कितना परसेंट आयन फॉर्म हुआ है, मतलब कितना, 10%, मतलब जितना भी मैंने अमाउंट ऐड किया था उसमें से कितना परसेंट सॉल्ट ने आयन फॉर्म किया है, 10%, 20%, 50%, 80%, and that how much ion has been formed, to what extent the ions have been formed, are called as what, degree of dissociation। okay, मतलब अगर हमें कोई सॉल्यूशन का मोलार कंडक्टिविटी मालूम है तो मोलार कंडक्टिविटी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस वाटर में कितना डिसोसिएट हुआ है। ओके, मतलब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमें मोलार कंडक्टिविटी मालूम है, इसका मतलब वो वाटर के अंदर कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना परसेंट उसने आयन फॉर्म किया है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ व्हाट, मोलार कंडक्टिविटी। ओके, ये हमारा कंसेप्ट है। तो देखो अब यहाँ पे सी हियर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is denoted by अल्फा। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमारा टर्म है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल अल्फा, करेक्ट। एंड लैम्बडा सी, लैम्बडा सी का मतलब क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट V1 कॉन्सेंट्रेशन। मतलब
एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बडा सी का मतलब क्या हुआ, लैम्बडा मतलब मोलार कंडक्टिविटी एंड सी का मतलब एट अ पर्टिकुलर गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड लैम्बडा 0 या इसे लैम्बडा इंफिनिटी भी बोल सकते हो, लैम्बडा 0 और लैम्बडा इसका मतलब क्या हुआ, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब लैम्बडा सी का मतलब हुआ था है मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में मोलार कंडक्टिविटी है, और लैम्बडा 0 का मतलब क्या होता है, लैम्बडा 0 और लैम्बडा इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कांस्टेंट, मतलब जब हमारा सॉल्यूशन एकदम डाइल्यूट रहेगा तब इसका कंडक्टिविटी कितना है। नाउ जस्ट टेक वन वैल्यूज हियर, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी का मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्बडा 0 मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये अल्फा फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी है, अल्फा के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है डिसोसिएशन कांस्टेंट। व्हाट इज दिस फॉर्मूला हियर, k इक्वल टू, ये फॉर्मूला में लास्ट ईयर सॉरी ये फॉर्मूला तुम अभी ये साल चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम में स्टडी करोगे। k इक्वल टू, k का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी माइनस सॉरी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो मुझे यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन मालूम है और 1 माइनस अल्फा, तो मुझे क्या पता चलेगा, के का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब हमारा जो सब्सटेंस है वो वाटर के अंदर कितना डिसोसिएट हुआ है। तो हमें अल्फा से भी पता चलेगा कितना डिसोसिएट हुआ है और हमें के से भी पता चलेगा वो कितना डिसोसिएट हुआ है। तो मतलब अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर उसका हमें मोलार कंडक्टिविटी मालूम है तो मोलार कंडक्टिविटी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस वाटर के अंदर कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, 10%, 20%, 50%, 80%। इसके यहाँ से पता चलेगा, किससे पता चलेगा हमें, अल्फा एंड के से। ओके, सो from alpha and k, yes, alpha is called as what, degree of dissociation, and k is called as what, dissociation constant. So from alpha and k we will come to know about what extent electrolyte has dissociated। अगर मुझे अल्फा और के का वैल्यू अगर मालूम है तो मुझे तो क्या पता चलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर में कितना डिसोसिएट हुआ है। करेक्ट, अल्फा और के, और अल्फा और के मुझे कहाँ से पता चलेगा, अल्फा और के मुझे कहाँ से मिलेगा, लैम्बडा सी का मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड लैम्बडा 0 का मतलब क्या हुआ, मोलार कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसके ऊपर का न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ के भी न्यूमेरिकल उन्होंने एक्सरसाइज में नहीं दिया है तो हमें सॉल्व एग्जांपल ही करना है। ओके, सो जस्ट गो फॉर द सॉल्व एग्जांपल। पेज 95, ओके, प्रॉब्लम 5.4, पेज 95, प्रॉब्लम 5.4। ओके, देखो, I'll just share the problem with you। उन्होंने क्या बोला है, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 16.5।
मतलब अगर हम लोगों ने एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार लिया तो वहां पे उसका कंडक्टिविटी कितना था 16.5. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो मुझे अल्फा और के फाइंड आउट करना है. इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज 390.7 per ohm centimeter square per mole. मतलब उन्हें क्या किया देखो, see they have given the value of lambda c. What is the meaning of lambda c? Molar conductivity at given concentration. तो उन्हें लैम्डा सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? लैम्डा सी का मतलब they have given the value 16.5 per ohm centimeter square per mole. At which concentration? 0.01 molar. See here. मतलब अगर 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01. और 0.01 पे उसका मोलर कंडक्टिविटी कितना है? 16.5. तो देखो 0.01 मोलर जब कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत ही कम है. इसका मतलब ये कम डिसोसिएट हुआ होगा. देन लैम्डा इंफिनिटी का वैल्यू में कितना दिया हुआ है? 390.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. मतलब जब मैं एसिटिक एसिड को कंप्लीटली डाइल्यूट करूंगा, मतलब एकदम जीरो कॉन्सेंट्रेशन में लेके जाऊंगा, मतलब इससे और आगे आयन फॉर्म नहीं हो सकते, तब इसका कंडक्टिविटी कितना है देखो 390. मतलब जब एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 था तब उसका कंडक्टिविटी 16.5 था. बहुत कम कंडक्टिविटी है. बहुत कम कंडक्टिविटी क्यों है? बिकॉज 0.01 मोलर एसिटिक एसिड में बहुत कम आयंस थे. लेकिन जब मैंने एसिटिक एसिड को एकदम डाइल्यूट कर दिया, एकदम डाइल्यूट जीरो पे लेके गया, तब मतलब सारे आयंस फॉर्म हो गए थे, उससे ज्यादा और आयंस फॉर्म नहीं हो सकते थे. तब मेरा कंडक्टिविटी कितना है देखो 390.7 है. तो इसलिए हमें उन्हें पूछा है कि 0.01 मोलार पे कंडक्टिविटी 16.5 है. मतलब 0.01 मोलार पे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था या वो कितना डिसोसिएट हुआ था. तो वी हैव टू फाइंड आउट, calculate first degree of dissociation at 0.01 मोलर. मतलब जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है तब एसिटिक एसिड कितना डिसोसिएट हुआ रहेगा. एंड सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट डिसोसिएशन. सेकेंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो के, और एसिड है इसलिए कांस्टेंट क्या रहेगा? के. देखो के इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट. अगर एसिड रहेगा तो के ए, और अगर बेस रहेगा तो के बी. तो हमें के ए और के बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके. तो अभी सबसे पहले देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन. तो मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन मतलब 0.01 मोलर पे कंडक्टिविटी कितना है? 16.5 डिवाइडेड बाय जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी कितना है? 390.7 है. तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 0.0422. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बिकॉज वैल्यू वहां पे दिया हुआ है. ये मुझे अल्फा का वैल्यू मिला. ये क्या मुझे अल्फा मिला? तो अल्फा का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मतलब अल्फा इज 0.0422. मतलब 0.0422 डिसोसिएशन. तो अगर मुझे परसेंटेज में देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? परसेंटेज डिसोसिएशन.
परसेंटेज डिसोसिएशन, ये सारे फॉर्मूले तुम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम में स्टडी करोगे। परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा परसेंट, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं था। अल्फा परसेंट का मतलब क्या हुआ, जो भी मुझे अल्फा का वैल्यू मिला है उसे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा आई हैव गॉट हियर 0.0422 multiply by 100, so how much I will get here 4.22%। इसका मतलब जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलार था, हमारा मोलार कंडक्टिविटी 16.5 था, एट दैट टाइम एसिटिक एसिड वाटर में कितना डिसोसिएट हुआ था, ओनली 4.22%। मतलब एसिटिक एसिड वाटर के अंदर स्लाइटली डिसोसिएट हुआ था, इसीलिए उसका मोलार कंडक्टिविटी कम था। ओके, मतलब 0.01 मोलार पे मोलार कंडक्टिविटी कम है। क्यों कम है, बिकॉज 0.01 मोलार पे वो डिसोसिएट कितना हुआ था 4.22%। और देखो लैम्बडा जीरो का वैल्यू 390.7 है। 390.7 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब अगर हमारा एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो उसका मोलार कंडक्टिविटी कितना रहेगा 390.7। और अगर हमारा एसिटिक एसिड खाली 4% डिसोसिएट होगा तो कंडक्टिविटी कितना 16.5। तो इससे हमें अल्फा पता चला। अल्फा का मतलब कितना डिसोसिएट हुआ है या कितने परसेंटेज से डिसोसिएट हुआ। नाउ विल फाइंड आउट द सेकंड पॉइंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सो Ka इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अभी ये देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ओनली अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अल्फा परसेंटेज इज कॉल्ड एज परसेंटेज डिसोसिएशन। तो हमें अल्फा यूज करना है, मैंने खाली यहाँ पे अल्फा लिखा है, अल्फा परसेंट नहीं लिखा है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ द अल्फा, ये 0.0422 स्क्वायर इनटू, हमें फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट आल्सो विच कॉन्सेंट्रेशन 0.01, डिसोसिएशन कांस्टेंट एट 0.01 मतलब 0.01 मोलार पे हमारा एसिटिक एसिड कितना डिसोसिएट हुआ था, करेक्ट। तो यहाँ पे फाइंड आउट की इनटू कॉन्सेंट्रेशन 0.01, 1 माइनस अल्फा 0.0422। और ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1 पॉइंट, अगर सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। अगर हमें सॉल्व करें सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट डूइंग राइट डायरेक्ट आंसर, मतलब ट्राई करके देखो, नहीं आया तो मुझे बोल देना। यहाँ पे आंसर है 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵, 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट, कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट। तो ये हमारा आंसर था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, और ये हमारा आंसर है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। ओके ओके, एक लास्ट टॉपिक बाकी है। अगर आप टेक्स्ट साथ में रख तो ये हमें पता चला कि हाउ टू फाइंड, मतलब अगर हमें मोलार कंडक्टिविटी, हमारा हेडिंग क्या था कि अगर मुझे मोलार कंडक्टिविटी मालूम रहेगा, अगर मुझे मोलार कंडक्टिविटी मालूम रहेगा तो मोलार कंडक्टिविटी से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हुआ है। कम डिसोसिएट हुआ रहेगा तो मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू लेस रहेगा, और ज्यादा डिसोसिएट अगर हुआ रहेगा तो मोलार कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। और ये कंसेप्ट किसके लिए हमें अप्लाई करना है, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी हमें ग्राफिकल मेथड से मिल जाता है। मतलब किससे, तो कोलार्स इक्वेशन से मिल जाता है। व्हाट इज कोलार्स इक्वेशन, लैम्बडा जीरो इज इक्वल टू a रूट सी प्लस लैम्बडा जीरो, उस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है, करेक्ट। ओके, नाउ एक लास्ट टॉपिक जो इसके ऊपर बेस्ड है वो अभी मैं कंप्लीट करूंगा। अगर आप पेज टर्न करोगे तो पेज टर्न में देखा जाए ट्राई दिस लिखा है, ट्राई दिस, ट्राई दिस
ट्राई दिस, हमने क्या बोला है, obtain the expression for dissociation constant in terms of lambda c and lambda 0. Obtain the expression for dissociation constant in terms of lambda c and lambda 0. तो देखो अभी मैंने यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो उन्हें अल्फा के फॉर्म में नहीं चाहिए, उन्हें किसके फॉर्म में चाहिए, लैम्डा सी एंड लैम्डा 0। तो मैं स्टार्ट करूंगा डेरिवेशन, k इक्वल टू, या ओनली k लिखूंगा, k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला क्या है देखो, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0 स्क्वायर, मैंने अल्फा का वैल्यू लिखा, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0 इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा 0, ओके, इक्वल टू, अभी मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे लैम्डा सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा सी, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा सी, this second, okay, and last step lambda square c upon lambda 0 square into c, और ये हमारा डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या आएगा, इनटू, इनटू क्या लिखोगे फिर, एक मिनट, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा सी, तो लैम्डा 0 माइनस लैम्डा सी, यहाँ पे लैम्डा 0 है तो ये लैम्डा 0 ऊपर चला जाएगा और अपॉन क्या आएगा, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा सी, ओके, ये सी है, एंड देन हियर कैंसलेशन में क्या होगा, देखो यहाँ का लैम्डा 0 एक कैंसिल हो जाएगा और ये लैम्डा 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में फिर क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर सी, लैम्डा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा 0 और ब्रैकेट में क्या आएगा, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा सी। मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारा हुआ, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग लैम्डा सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा 0 लैम्डा 0 लैम्डा सी सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो मतलब तो भी हमें के का वैल्यू मिलेगा। देखो इधर हम लोगों ने प्रॉब्लम में कैसे के का वैल्यू फाइंड आउट किया है, 1 मिनट, देखो प्रॉब्लम में हमने के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया है, बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अगर तुम्हें ये फॉर्मूला मालूम नहीं रहेगा तो भी देखो हमारे पास कौन से वैल्यू मालूम थे, लैम्डा सी और लैम्डा 0 मालूम था, तो देखो यहाँ पे लैम्डा सी मालूम है, लैम्डा 0 मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, तो भी आप के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट from lambda c and lambda 0. So we can write here equilibrium constant can be calculated, equilibrium constant can be calculated by using molar conductivity at c, मतलब given concentration, and molar conductivity at 0 concentration, infinite dilution, इनसे भी हम लोग कैलकुलेट। लेकिन ये जो पार्ट मैंने अभी किया हुआ है ये एडिशनल पार्ट है, दैट दे हैव गिवन एज अ ट्राई दिस। मतलब अगर हमें ये इक्वेशन अगर मालूम है k इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे भी मोलर कंडक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, इसे मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके।
तो क्लियर है आज का कंसेप्ट। आज हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव डन द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कोलार्स लॉ। और सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने किया है कि अगर हमें मोलार कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मालूम है और मोलार कंडक्टिविटी अगर हमें जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी मालूम है, तो वो सब्सटेंस वाटर में कितना डिसोसिएट हुआ है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई हैव डन टिल हियर। कुछ डाउट्स है तो बोल।